Hello students, once again I am with you and today we will discuss about the relationship between phase in current and potential difference across a circuit in which resistance, inductor and capacitor are taken in series. We will find out the phase relationship. We will also find out the opposition offered by the circuit in flowing current that will set to the impedance. So let we discuss about it. There are two methods to find out the impedance or phase relation. One is a geometrical method, the other one is analytical method. The geometrical method is bit easy method. First I will discuss with you the geometrical method to find out the impedance of an AC circuit in which resistance, capacitor and inductor are taken in series. Let me discuss about this. Impedance of a circuit, AC circuit rather, in which R, L and C are taken in series. Let this is R, this is L and this is C. And we are applying an alternating source of EMF E that is equal to E naught sine of omega t. Let me consider that I is the instantaneous current and I naught is the maximum value of current flowing through the circuit. As the three elements are in series, the current flowing through each of the element is same. Let me discuss what is the potential difference across each of the element. Let me take this. The potential difference across this element will be equal to IR. The potential difference across this element will be equal to dL by dt, LdI by dt. Also, I will not use this. I will use IXL. And what is the potential drop across this resistance? That is I. Now, IXC. We would use the phasors. Therefore, we will take the maximum value of current. Let me take the maximum value of current. I naught R. This is will be the peak value of potential difference. This is I naught XL. This is I naught XC. I am not taking this E is equal to E naught sine omega t. I am taking it E is equal to E naught sine omega t. E is equal to I naught sine omega t plus phi. I am taking this. E is equal to E naught sine omega t plus phi. And I will calculate the value of phi. I will calculate what is the total opposition offered by the R, L and C in flowing current. How? Let me. What is the potential drop across the resistance? VR, that is equal to I naught R. If I take this as phasor, then I can take that VR that is equal to I naught R. And what is the direction of this? What is the direction of this? So this is phase of VR is same as that of I naught. How I can say that? I can say that this because in a circuit containing resistance only, in a circuit containing resistance only, the current and voltage are in same phase. I am preparing the phasor diagram here.
let this OA is representing the current phasor. Here this is omega t. I'm assuming that I is equal to I naught sine of omega t. मैं क्या assume करके चल रहा हूं? मैं assume करके चल रहा हूं I is equal to I naught sine omega t and I will find out the value of phi. So first of all, the potential difference across the resistance VR is equal to I naught R and the phase of VR is same as that of I naught. Therefore, I am representing it by, इसको मैं नहीं लिखता, इसको मैं A से रिप्रेजेंट कर देता हूं. This is represented by what? OA. VR is represented by OA. This is along the current phasor. This is along the current phasor. Why? Because the current and voltage are in same phase in a circuit containing resistance only. Now, what is the VL? What is VL? That is equal to I naught XL. Phase of VL is pi by 2 ahead of I naught. We are using the previous knowledge. In a circuit containing inductor only, the potential leads the current by a phase of pi by 2. So therefore, I am representing it by OB. I am representing it by OB. This is representing VL. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? VL क्या है आपके पास? This is what? This is pi by 2. This is I naught. This is VR. This is I naught. This is VL. This is I naught. This is VC. VC is equal to I naught XC. Phase of VC is pi by 2 behind I naught. In the circuit containing capacitor only, the voltage lags behind current by a phase of pi by 2. Pi by 2. Therefore, I am representing it by OC. This is what VC. Now, according to the laws of vector addition, according to laws of vector addition, क्या हुआ हमारे पास ये? VC is just opposite to VL. Therefore, the resultant of both of these is OD, and that is what? VL minus VC. And if we complete the parallelogram OAED, this is the resultant potential difference which I am representing by E naught. Therefore, E naught will be equal to square root of what? This angle between VL minus VC and VR is 90 degree. Therefore, this is VR square plus VL minus VC square. This is the value of E naught. Now, let the potential leads the current by a phase of phi. Then from the figure, tangent phi is equal to VL minus VC upon VR. ये आ गया हमारे पास. ये किसके बराबर बचा हमारे पास? ये बचा हमारे पास VL minus VC के बराबर. This is VL minus VC. तो यहां से हमारे पास E naught किसके बराबर हो गया? VR square plus VL minus VC का whole square. अगर मैं बात करके चलूं, what is E naught? That is square root of
VR is equal to I naught R, VL is equal to I naught XL, VC is equal to I naught XC. I naught R square plus I naught XL minus I naught XC square. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, E naught is equal to I naught R square plus XL minus XC square और सारे का स्क्वायर रूट. तो यहां से मेरे पास E naught by I naught, जिसको हम इंपीडेंस बोलते हैं, Z, that is equal to square root of R square plus XL minus XC square. तो ये हमारे पास किस चीज के लिए आ गया, दिस इज द इंपीडेंस. ऑल्सो वी कैन राइट टेंजेंट फाई इज इक्वल टू I naught XL minus I naught XC divided by I naught R. Therefore, that is XL minus XC upon R. तो ये क्या हो गया हमारे पास, what is this? This is the impedance of a circuit which consists the resistance, the inductor and the capacitor in series. तो ये हमारे पास रिजल्ट होकर आ गया, कैलकुलेट होकर के. फ्रॉम द फिगर वी हैव टेकन द वोल्टेज लीड्स द करंट. कुछ हमने इस तरह से लिया है कि वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है किसको, करंट को लीड करती है. देयरफॉर दिस टेंजेंट फाई इफ पॉजिटिव, वोल्टेज विल लीड द करंट. इफ टेंजेंट फाई इज नेगेटिव, देन करंट विल लीड द वोल्टेज. फिर आपके पास फाई क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा. तो ये हमारे पास सारा का सारा आ गया. हम अब इनको एक बार थोड़ा सा सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं. सेपरेटली हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. क्या हुआ हमारे पास हुआ R only, phi is equal to 0, current and voltage are in same phase. और भाई आपका there is no effect of frequency on the resistance. L only, XL is equal to L omega. Voltage leads the current by pi by 2. C only, XC is equal to 1 upon omega C. Voltage lags the current by pi by 2. R, L and C in series. Z is equal to square root of R square plus XL minus XC whole square, and tangent phi is equal to XL minus XC upon R. If XL greater than XC, voltage leads. Inductor dominant circuit. अगर हमारे पास XL लेस देन XC है, करंट लीड्स. कैपेसिटेंस डोमिनेंट सर्किट है. अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके चलूं किसका, Z का किसके साथ, ओमेगा के साथ, वी विल हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ. हियर Z minimum is equal to R. At this place what happens, as we see that XL grows with frequency and XC reduces with frequency,
XL grows, XC decreases. XL grows from 0 with frequency, XC reduces from infinity with frequency. At a certain place, XL is equal to XC, and that will be XL minus XC will be equal to 0. That will be the minimum value of impedance, and this type of frequency is named as resonant frequency. ये क्या हो गया हमारे पास? This is resonant frequency. If I plot the current versus frequency, we will have this type of graph. Initially at omega is equal to 0, there is a big difference. There is a big difference between XL and XC. Therefore, Z will be quite high. And this difference goes on decreasing because XC starts reducing from infinity and XL starts increasing from 0. At a certain point, XL will become equal to XC and Z will be equal to R. There will be the minimum impedance. After that, XL will go on increasing and XC will go on decreasing. Again, XL minus XC will go on increasing, Z will be increasing. And current is reciprocal of no doubt. I naught is equal to what? E naught by Z. तो हमारे पास जैसे जैसे Z का उल्टा आपके पास ग्राफ हो जाएगा, किसका ग्राफ हो जाएगा? I का. तो ये आ गया आपके पास I का ग्राफ किसके साथ? ओमेगा के साथ. The current at which the frequency at which the current is maximum is again said to be resonant frequency. इसको क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जहां पर करंट आपका मैक्सिमम होता है. ओमेगा आर जो है आपके पास क्या कंडीशन है? XL इज इक्वल टू XC. ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी. देयरफॉर ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी. देयरफॉर ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट. वी विल आल्सो डिस्कस द सीरीज रेजोनेंट सर्किट सेपरेटली. तो अभी हमने क्या किया? वी मूव फर्दर. अब हम इसके स्पेशल केस निकाल करके चलते हैं. हमने इंडिविजुअल आर ले लिया, इंडिविजुअल एल ले लिया, इंडिविजुअल सी ले लिया. हमने आर को, एल को और सी को, तीनों को मिला करके भी ले लिया. तो अब हम दो दो इकट्ठा करते हैं. आर एल इन सीरीज. अगर आर और एल आपके पास किस में हो? सीरीज में हो. देन व्हाट विल हैपन? आर और एल अगर आपके पास सीरीज में हो तो वी कैन से दैट ई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर. यहां पर भी मैं अगर ई नॉट लिखूं तो किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर. ई नॉट तो इतना आ गया और जेड किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. यानी दिस जेड विल इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी. ये जेड क्या करेगा? आपका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. टेंजेंट फाई इज इक्वल टू वी एल अपॉन आर, वी आर, और एक्स एल अपॉन आर. तो ये आपके पास कब आया? जब हमारे पास आर और एल सीरीज में है. दिस हैपेंस व्हेन आर एंड एल आर इन सीरीज. अगर मैं बात करके चलूं आर सी इन सीरीज, तो हमारे पास ई नोट किसके बराबर आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर. और भाई जेड किसके बराबर आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर. यहां पर जेड फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. यहां पर जेड फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. यहां पर अगर आपका जेड इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. यहां पर आपका जेड अगर क्या करेगा? इंक्रीज. जेड ओमेगा अगर इंक्रीज करेगा तो जेड क्या करेगा?
डिक्रीज करेगा, और जेड डिक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. नाउ व्हाट इज टेंजेंट फाई? That is minus Vc upon Vr. Negative sign represents current is leading. यहाँ पर पॉजिटिव साइंस रिप्रेजेंट्स दैट वोल्टेज इज लीडिंग. यहाँ पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स करंट इज लीडिंग, और दिस इज माइनस एक्स सी अपॉन आर. वन मोर केस may happen, and that is what that is said to be L and C in series. L and C in series. तो हमारे पास ई नोट किसके बराबर हो गया, सीधा सीधा हो गया वी एल माइनस वी सी का मैग्नीट्यूड जो भी है. वी आर जीरो हो गया यहां पर, और वो हमारे पास इसमें पुट किया वी एल माइनस वी सी का जो भी मैग्नीट्यूड है. एंड व्हाट इज जेड? जेड इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी. दैट इज आल्सो सेड टू बी एक्स. ओनली द रिएक्टेंस. If I plot the graph of reactance Z X rather say with omega, we will have this type of reactance. ऐसे आएगा आपके पास. अगर मैं करंट की बात करके चलूं तो how the current will vary? I omega, this is resonant, like this. At resonance frequency, this reactance will be equal to 0, and I is equal to definitely E by X. So current will raise to infinite value when XL is equal to XC. तो ये हमारे पास सारे का सारा हो गया. अब हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं दो तीन क्वेश्चंस को. This is like this. This is the variation of XL. This is the variation of XC. This is the variation of R. इधर आपके पास या तो XL है या XC है या R है. इधर क्या है, ओमेगा. और आपने कहा Z जो है आपके पास ऐसे, Z मिनिमम दैट इज इक्वल टू R ओमेगा R. अब आपका सीधा सीधा है for omega less than omega R, Z decreases with frequency. एंड ये आपके पास है ये रीजन, दिस रीजन Z डिक्रीजेस, और इस रीजन में आपका Z क्या करता है, इंक्रीज करता है. व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन व्हाट, ओमेगा R, Z क्या करता है, इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी. तो अब इसके ऊपर बेस्ड अगर मैं बात करके चलूं, ये Z डिक्रीज क्यों हुआ, मोटी सी बात है. दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ XL एंड XC, और वो आपका डिक्रीज होती चली गई इस लाइन की लेंथ. इस लाइन की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, XL माइनस XC के मोड को, और फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट कर गया. अब कोई पूछे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, इसके साथ एक बल्ब लगा दिया और अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया. अब हम उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं. नाउ हाउ द ब्राइटनेस ऑफ दिस बल्ब विल चेंज. ये रहा हमारे पास, जेड डिक्रीज करेगा तो करंट हमारे पास क्या करेगा, करंट विल इंक्रीज.
यानी ओमेगा लेस देन ओमेगा आर के लिए आपके पास आई इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी। कब तक इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी के साथ? तब तक इंक्रीज करेगा जब तक ओमेगा लेस देन किसके है, ओमेगा आर के लेस है। जब तक आपका ओमेगा लेस देन ओमेगा आर के है तो करंट आपका इंक्रीज करेगा, और अगर आपका ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर है तो आपका करंट जो है डिक्रीज करेगा विद फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब इसने पूछा क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, ब्राइटनेस के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा? तो हमें ये बताना पड़ेगा पहले कि जो फ्रीक्वेंसी की रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इफ ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिस ब्राइटनेस विल डिक्रीज because current will decrease, or if less than resonant frequency this brightness will increase because current increases। अब एक और बात आती है कि भाई हमारे पास हमने एल चेंज किया किसी तरह से, इसके अंदर आयरन रॉड डाल दी, हाउ द एक्सेल वेरीज, और एक्सेल जब वेरी करता है तो जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब वही बात है, एक्सएल इंक्रीज करे तो ये डिफरेंस इंक्रीज भी हो सकता है, एक्सएल इंक्रीज करे तो ये डिफरेंस डिक्रीज भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? ऑलरेडी अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, मैग्नीट्यूड इनका, ये मैग्नीट्यूड ये एक्सएल और एक्ससी पॉजिटिव होते हैं, ऑलरेडी अगर एक्सएल ग्रेटर देन किसके है, एक्ससी के है, तो ये डिफरेंस इंक्रीज करेगा। और एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है तो आपके पास ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा आर है। तो अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है तो आपका जेड इंक्रीज करेगा, और अगर एक्सएल लेस देन एक्ससी है फिर ये डिफरेंस डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सएल अगर बढ़ जाएगा तो ये डिफरेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसके ये आप चाहे एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट लगा लो, और चाहे बेटर है इसको मैग्नीट्यूड में कर लो, इसका मैग्नीट्यूड लेना विच इज ग्रेटर। तो यहां से हमें फर्क देखना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन जेड, और जेड के इफेक्ट देखने के बाद में हम करेंगे दो छोटी छोटी प्रॉब्लम और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई अगर आर एल और सी तीनों बजाय सीरीज के पैरेलल में हो तो क्या होगा। पहले मैं एक सिंपल सी डिस्कस कर लेता हूं। What will be the effect on the brightness of this bulb of frequency? तो सीधी सीधी बात है बेटा, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्सएल बढ़ेगा। एक्सएल बढ़ेगा तो आई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, आई डिक्रीज करेगा तो ब्राइटनेस कम होगी। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो आपके पास एक्सएल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। अगर ओमेगा राइजेस एक्सएल राइजेस, जेड राइजेस, आई इज इक्वल टू ई बाई जेड दैट इज डिक्रीजेस, तो ब्राइटनेस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर मैं यहां पर आयरन रॉड डाल दूं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दूं, तो एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, तो ये इसी तरह से अगर कैपेसिटर लगा है बल्ब के सीरीज में, अब एक्स सी किसके बराबर, 1/ओमेगा सी किसके बराबर, जेड किसके बराबर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर रूट के बराबर। अगर ओमेगा इंक्रीज हुआ, ओमेगा इंक्रीज हुआ तो एक्स सी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एक्स सी डिक्रीज हुआ तो जेड भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जेड डिक्रीज हुआ तो आई क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ब्राइटनेस इंक्रीज हुआ। ये तो फर्क आ गया किसका, ओमेगा का। अगर बात करके चलो कि कैपेसिटेंस किसी तरह से इंक्रीज होती है, तो अगर कैपेसिटेंस भी किसी तरह से इंक्रीज होती है तो एक्स सी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्स सी अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, जेड
इंक्रीज करेगा, सॉरी, अगर C इंक्रीज करेगा तो XC डिक्रीज करेगा, रेसिप्रोकल है। C अगर इंक्रीज करता है तो XC इंक्रीज करेगा, ओहो, C अगर इंक्रीज करेगा तो XC डिक्रीज करेगा, XC डिक्रीज करेगा तो Z भी डिक्रीज करेगा, Z भी डिक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा और आपके पास ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इंक्रीज होगी। ठीक है, कई बार वो इसको कह देता है सेपरेशन बढ़ाई, सेपरेशन बढ़ाई, C घट गया, C घट गया, XC बढ़ गया, XC बढ़ गया, Z बढ़ गया, Z बढ़ गया, I डिक्रीज हो गया, I डिक्रीज हो गया ब्राइटनेस का। What will happen when R, L and C are in parallel? तो पैरेलल होगा तो क्या होगा? तो फेजर डायग्राम का हम अप्लाई करके चलते हैं। पैरेलल अगर है हमारे पास चीजें, then potential difference across every element is same. तो क्या हो गया हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस एवरी एलिमेंट सेम हो गया। ये मेरे पास आई आर हो गया, किसके बराबर हो गया? आई आर हो गया मेरे पास ई नॉट बाई आर के बराबर। ये मेरे पास आई सी हो गया। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाई ए फेज ऑफ पाई बाई 2, और आई सी किसके बराबर हो गया? दैट इज ई नॉट बाई एक्स सी हो गया। ये मेरे पास आई एल हो गया। इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई ए फेज ऑफ पाई बाई 2, तो आई एल किसके बराबर हो गया? दैट इज ई नॉट बाई एक्स एल, दिस इज एक्स सी। अब वही है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये मैंने कर दिया, दिस इज आई सी माइनस आई एल। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि नेट करंट मेरे पास जो आ गया वो स्क्वायर रूट आ गया, किसका आ गया? आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर। What is I naught? I naught is equal to definitely E naught by Z, net voltage divided by net opposition. IR is equal to E naught by R इसका स्क्वायर प्लस E naught by एक्स सी माइनस E naught by एक्स एल इसका स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास E naught by Z, ई नॉट सारा कैंसिल हो गया, 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्स एल सारे का स्क्वायर। ये कौन से केस में? ये पैरेलल के केस में। कौन से केस में? पैरेलल के केस में। और पैरेलल के केस में क्या है? टेंजेंट फाई इज इक्वल टू व्हाट? आई सी माइनस आई एल डिवाइडेड बाई आई आर। करंट लीड्स, ये हमने मान रखा है, ये फार्मूला तब वैलिड है जब करंट आपका लीड करे। या फिर हमारे पास ये हो गया 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन आर। तो ये आर हो गया, ऊपर आर ऊपर चला गया, यानी आर अपॉन एक्स सी माइनस आर अपॉन एक्स एल। ये क्या चीज हो गया मेरे पास? टेंजेंट फाई के बराबर हो गया। व्हेन व्हाट? व्हेन आपका ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर इन पैरेलल। Now, I will discuss when the three elements are in series and I am calculating the impedance when by analytical method. Let me discuss. I don't know what is this E. I will calculate this E by assuming that I is equal to I naught sine of omega t. By Kirchhoff law, I can write E is equal to IR plus L di by dt plus
Q by C. The potential difference across this element is IR. The potential difference across this element is L di by dt. And the potential difference across this element is Q by C. Let me put I is equal to I naught sin omega t. Therefore, di by dt is equal to I naught omega cos omega t. And dq by dt is equal to I naught sin omega t, or q is equal to integration of I naught sin omega t dt, and that will be equal to minus of I naught by omega cos omega t. ये वैल्यूज मैं इसमें पुट करके चलता हूं. व्हाट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस di by dt is I naught omega cos omega t, L omega I naught cos omega t minus I naught by omega c, I naught by omega c cos omega t. This E is equal to again I naught R sin omega t प्लस इसको मैं लिख रहा हूं बेटा XL, और इसको लिख रहा हूं मैं 1 ओमेगा सी को लिख रहा हूं XC, तो XL माइनस XC I naught cos omega t. राइट, तो ये मेरे पास आ गया E इज इक्वल टू, राइट. अब मैं एक रिप्लेसिंग कर रहा हूं. लेट R is equal to Z cos theta and XL minus XC is equal to Z sin theta. Therefore, Z square is equal to R square plus XL minus XC होल स्क्वायर. दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, या 5 यूज कर लेता हूं वर्ड 5 यूज कर लिया वर्ड. तो क्या हो गया हमारे पास जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर. तो यहां से आ गया मेरे पास जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर. वही आ गया, पर हमें ये नहीं पता कि क्या जेड इंपीडेंस है. लेट मी कैलकुलेट इट. अभी पता लग जाएगा कि जेड क्या है, इंपीडेंस है. आल्सो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर. अभी मैं प्रूव कर देता हूं कि ये जेड जो है वो इंपीडेंस है. कैसे, तो यहां से आपके पास आर साइन ओमेगा टी, आर को हमने लिखा जेड कॉस फाई, तो आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी को हमने लिखा फिर दोबारा से आई नॉट जेड, क्या चीज बोला, कॉस ओमेगा टी साइन फाई. अब सीधी सीधी बात है बेटा, हमारे पास E इज इक्वल टू आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई. माइनस नहीं प्लस है, प्लस प्लस है. तो यहां से क्या आ गया, E इज इक्वल टू व्हाट इज आई नॉट जेड, आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ये इक्वेशन आ गई. दिस मस्ट बी द पीक वैल्यू ऑफ दिस टर्म, देयरफॉर दिस इज E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ये आ गया हमारे पास. तो क्या आ गया हमारे पास, E नॉट is equal to I naught Z. Therefore, Z is equal to E naught by I naught. Comparing with Ohm's law, this must be the opposition offered by the alternating elements in flowing current. तो ये आपके पास analytical method है to solve the what impedance. अगर parallel में भी हो
तो पैरेलल में आपके पास उल्टा चला जाएगा, दैट विल बी आई विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। यहां से आपके पास सोल्व होकर के चलेगा, वो हमारे पास किस में होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।